Around 20-25 minutes, so let's just go straight into the teaching. Okay. 20-25 मिनट है हमारे पास, तो सीधा हम शिक्षा की ओर मुड़ते हैं. Friends, many Christians struggle in their walk with God as they are perplexed in their view of the Old Testament in light of the New Testament. दोस्तों, कई मसीह परमेश्वर के साथ अपनी चाल में संघर्ष करते हैं क्योंकि वे नए नियम की रोशनी में पुराने नियम को समझ नहीं पाते. John 1:17 says, "For the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ." यूहन्ना 1:17 कहता है कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची. Both law and grace come from God. व्यवस्था और अनुग्रह दोनों ही परमेश्वर से आते हैं. Some people view the law and assume it was a seemingly impossible burden laid on man. How could God do such a thing? Others see the law as a super good and consider it to be the way we are to live our lives today, while still others know that the law is good but wonder how to view it after receiving the revelation of grace. कुछ लोग व्यवस्था को देखकर सोचते हैं कि यह एक असंभव बोझ इंसान पर लादा गया है. अन्य लोग व्यवस्था को बहुत अच्छा समझते हैं और मानते हैं कि आज हमें इसी तरह अपना जीवन जीना है, जबकि कुछ अन्य लोग ऐसा मानते हैं कि व्यवस्था अच्छी है, पर सोचते हैं कि अनुग्रह के प्रकाश को पाने के बाद इसे कैसे देखा जाए. At the outset, let me tell you, God is the lawgiver. Even before he gave the Mosaic law, he is always full of grace then and now. That he gives his law is also an act of grace. शुरुआत में ही मैं आपसे कह देता हूं कि परमेश्वर व्यवस्था देने वाला है. मूसा को व्यवस्था दिए जाने से पहले ही, और वह हमेशा अनुग्रह से भरा है, तब और आज भी. God gave the law. The first 5 books of the Bible, called the Torah, contain 613 commandments called Mosaic law. Even before we look at the Mosaic law, it is paramount to see God as the lawmaker. He sets guidelines for mankind from the very beginning. परमेश्वर ने व्यवस्था दी. बाइबल की पहली 5 किताबों में, जिसे तोरा कहते हैं, 613 आज्ञाएं हैं, जिसे मूसा की व्यवस्था कहा जाता है. मूसा की व्यवस्था को देखने से पहले यह देखना जरूरी है कि व्यवस्था बनाने वाला परमेश्वर है. He established laws thousands of years before Moses' birth. And then conscience seemed to lead and guide these people when no written law existed. Romans 1:18 says, men were without excuse. They could see and know God and follow his ways. उसने मूसा के जन्म के हजारों साल पहले व्यवस्था को स्थापित किया, और अंतरकरण या विवेक जिसे हम कहते हैं, उसी से जैसे लोगों की अगुवाई और मार्गदर्शन कर रहा था. रोमियो 1 और 18वां वचन कहता है, मनुष्य के पास कोई बहाना नहीं था. वे परमेश्वर को देख और जान सकते थे और उसके मार्ग पर चल सकते थे. Now Abraham was given a promise. 430 years after Abraham, God called Moses and gave him the law. अब इब्राहिम से परमेश्वर ने एक वादा किया था. इब्राहिम के 430 साल बाद परमेश्वर ने मूसा को बुलाया और उसे व्यवस्था दी. Galatians 5:3 says, the law is one, the whole law, but to understand it better, we can segregate law into 3 sections: the moral, the ceremonial, and the civil law. गलातियों 5:3 कहता है, व्यवस्था एक ही है, पूरी व्यवस्था, लेकिन उसे बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें उसे 3 भागों में बांट सकते हैं: नैतिक, विधि संबंधित और शासन संबंधी. So the moral law, or the Decalogue, which is the 10 commandments, gives clear instructions on how to live a moral life. What one should do, for example, you should honor your father and mother, and what you should not do. For example, you shall not commit adultery and you shall not murder. नैतिक व्यवस्था या आदेश कहे जिसे हम, जो कि 10 आज्ञाएं हैं, एक पवित्र जीवन जीने के लिए स्पष्ट निर्देश देते हैं. एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए. उदाहरण के तौर पर आपको अपने माता पिता का आदर करना है, और एक व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए, और उसका उदाहरण है आपको व्यभिचार नहीं करना है या आपको हत्या नहीं करनी है. And then there was the ceremonial law, which spoke about the priesthood, sacrifices, atonement, the tabernacle, laws that declared what's clean and what's unclean.
और फिर विधियों की व्यवस्था थी जो याजकों और बलिदान और प्रायश्चित के बारे में बताती थी। तंबू के नियम बताते थे कि क्या शुद्ध है और क्या अशुद्ध। And finally was the civil law, the judicial one that looked at governing of the nation. और फिर अंत में शासकीय व्यवस्था, न्याय तंत्र संबंधित जो राष्ट्र के शासन के बारे में थी। Now the law was good. Everything about the law is good because it has come from God, who's a good God. The essence of the law is revelation of God. It shows us God. The character of God revealed to Moses is seen in the law. अब व्यवस्था तो अच्छी थी, व्यवस्था के बारे में सब कुछ अच्छा था, क्योंकि वह उस परमेश्वर से आई जो एक अच्छा परमेश्वर है। व्यवस्था का सार परमेश्वर का प्रकाशन है। परमेश्वर का चरित्र मूसा को दिए गए नियमों में झलकता है। Now we can look at the law and say, this is our God. The law was not given to impose intrusion, regulations on the people of God. It was not to be a burden. On the contrary, it was a blessing. हम व्यवस्था को देखकर कह सकते हैं यह हमारा परमेश्वर है। दोस्तों, व्यवस्था इसलिए नहीं दी गई थी कि परमेश्वर के लोगों पर जबरन नियम लादे जाए। उसे बोझ नहीं होना था, उसके बजाय उसे आशीष होना था। In Deuteronomy 11:26, God says, I'm setting before you today a blessing and a curse. The intention was to bless. God gave the law to bless. The purpose was to bring order, to protect, to prosper Israel. व्यवस्था विवरण 11:26 में परमेश्वर कहता है, सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूं। उद्देश्य आशीष देना था। परमेश्वर ने व्यवस्था आशीष देने के लिए दी। उसका उद्देश्य था अनुशासन लाना, इजराइल को सुरक्षा और खुशहाली देना। The purpose was to bring justice and equality, to encourage compassion, mercy, to shield the poor. The purpose was to provide for prosperity, safeguard health, and so on. This is all good. उद्देश्य था न्याय और बराबरी लाना, करुणा और दया करने के लिए उकसाना और गरीबों को सुरक्षित रखना। उद्देश्य था खुशहाली के लिए प्रबंध करना, सेहत वगैरह की सुरक्षा करना। यह सब कुछ बेहतरीन था। Now let's check out this example. In Deuteronomy chapter 24, 19 to 20, it says this: when you are harvesting in your field and you overlook a sheaf, do not go back to get it. Leave it to the alien, the fatherless, and the widow, so that the Lord your God may bless you in all the work of your hands. When you beat the olive from your trees, do not go over the branches a second time. Leave what remains for the alien, the fatherless, and the widow. Wow, how amazing is this heart of God. आइए इस उदाहरण को देखें जो व्यवस्था विवरण की 24वें अध्याय में 19वीं और 20वीं कलम में दिया गया है। बाइबल कहती है यहां पर, जब तू अपने पक्के खेत को काटे और एक पूला खेत से भूल से छूट जाए तो उसे लेने के लिए फिर न लौट जाना। वह परदेसी, अनाथ और विधवा के लिए पड़ा रहे, इसलिए कि परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष दे। जब तू अपने जलपाई के वृक्ष को झाड़े तब डालियों को दूसरी बार न झाड़ना, वह परदेसी, अनाथ और विधवा के लिए रह जाए। वाह, कितनी सुंदर बात है, कितना सुंदर हृदय है परमेश्वर का। So you see, compassion, justice, equality, the law was good and intended to be a blessing, but there was a chink in the armor. The law had a fatal flaw: people. तो यहां पर हम देखते हैं करुणा है, न्याय है, बराबरी जैसे विचारों में व्यवस्था जान डाल देती है। व्यवस्था अच्छाई के लिए थी, लेकिन यहां पर एक कमी रह गई, एक कमजोरी रह गई। व्यवस्था में एक, मान लो, एक तरीके से जानलेवा दोष था, और वो था मनुष्य। The law was good, but it was powerless because of man. This is what it says in Romans 8, verse 3. For what the law was powerless to do, in that it was weakened by the sinful nature. The sinful mind is hostile to God. It does not submit to God's law, nor can it do so. Man was helpless in his sin. व्यवस्था अच्छी थी, लेकिन वह मनुष्य की वजह से कमजोर थी।
रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय और तीसरा वचन में यह कहा गया है कि क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। However, this law has an effect on man. What does this law do then? It exposed sin. Romans 3:20 says, through the law we became conscious of our sin. मनुष्य पाप में लाचार था, लेकिन इस अच्छी व्यवस्था का मनुष्य पर असर होता है। तो फिर व्यवस्था करती क्या है? उसने पाप को उजागर किया है। रोमियो 3:20 कहता है, व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। Romans 7:13 says, did that which is good then become death to me? By no means. Nevertheless, in order that sin might be recognized as sin, it used what is good to bring about death, so that through the commandment, sin might become utterly sinful. The law made sin utterly gross and stark. रोमियो 7:13 कहता है, तो क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं, परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ, कि उसका पाप होना प्रकट हो और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पाप में ठहरे। व्यवस्था ने पाप को घोर और कोरा कर दिया। Let me give you an illustration. Tell someone, don't do this. And just because you said don't, everything within him wants to go ahead and do it. His greed is exposed. His rebellion comes into play. The law, in one sense, drives him to violate it and break it. We are prisoned by the law. मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप किसी से कहिए, यह मत करो, और क्योंकि आपने कहा है कि मत कर, उसके अंदर से सब कुछ उसमें वही काम करना चाहता है। उसका लालच उजागर हो गया है, अब वह विद्रोह करने लगता है। व्यवस्था एक तरह से उसे उल्लंघन करने या तोड़ने की ओर ले जाती है। हम व्यवस्था के कैदी है। Galatians 3:24. So the law became our guardian to lead us to Christ, that we might be justified by faith. So the law made man even more aware of his sinfulness in order to point us to Christ. Man is weak. This is precisely why the law points us to Jesus Christ. गलातियों 3:24 में कहा गया है, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने को हमारा शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। तो व्यवस्था ने मनुष्य को एहसास दिलाया कि वह पापी है, ताकि उसे मसीह की ओर ले जाया जा सके। So people struggle to get right with God by obeying the law. There just had to be another way. Listen to me. God never intended life through the law. He always intended life to be through his son, Jesus Christ. तो लोग व्यवस्था के पालन के द्वारा परमेश्वर के साथ सही होने में संघर्ष करते हैं। कोई और रास्ता होना ही चाहिए। परमेश्वर का उद्देश्य व्यवस्था के द्वारा जीवन देना कभी नहीं था। वह हमेशा चाहता था कि जीवन उसके बेटे यीशु मसीह के द्वारा आए। So we need to understand that even though the law is good, it is unable to give us life. We are incapable, and it is futile to think that we can find life through the law. Jesus was the only one who fulfilled the law. तो हमें यह समझना है कि हालांकि व्यवस्था अच्छी है, पर वह हमें जीवन नहीं दे सकती। हम काबिल नहीं है और सोचना बेकार है कि हम व्यवस्था के द्वारा जीवन पा सकते हैं। यीशु ही एकमात्र था जिसने व्यवस्था को पूरा किया। Jesus forsook his heavenly glory that he had with the Father in heaven. He became human. He came to seek and save the lost. Now, we all believe that he came to die for our sins. He was buried, and on the third day, he rose again, defeating sin and death. But the Bible enlightens us further on that Jesus accompanied what he accomplished through his finished work. यीशु ने स्वर्ग में पिता के साथ अपनी महिमा को छोड़ दिया और मनुष्य बन गया। वह खोए हुओं को ढूंढने और बचाने आया। अब हम सब मानते हैं कि वह हमारे पापों के लिए मारा गया और उसे गाड़ा गया, और वह
पाप और मौत पर जीत हासिल करते हुए तीसरे दिन जी उठा। लेकिन बाइबल आगे हमें भी बताती है कि यीशु ने उसके क्रूस के संपूर्ण कार्यों के द्वारा क्या-क्या हासिल किया है। In Matthew 5:17 and 18, Jesus says, "Do not think I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. I tell you the truth, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of pen will by any means disappear from the law until everything is accomplished." मत्ती की पुस्तक 5वां अध्याय 17वां और 18वां वचन में यीशु ने कहा, यह नहीं समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्य वक्ताओं की पुस्तकों को खारिज करने आया हूं। खारिज करने नहीं, परंतु पूरी करने आया हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। So, what does he mean? Jesus strongly emphasizes the authority of the law of God. He did not come to abolish the law, regardless of what the Pharisees accused him of. No one hearing Jesus' Sermon on the Mount could doubt his commitment to the scriptures. And then he says, I have come to fulfill the law. तो इसका क्या मतलब है? यीशु परमेश्वर की व्यवस्था पर बहुत जोर देता है। वह व्यवस्था को मिटाने नहीं आया, चाहे फरीसी उस पर यही इल्जाम लगाते रहे। कोई भी जो यीशु के पहाड़ी उपदेश को सुनता है, वह वचन के प्रति उसकी वचनबद्धता पर शक नहीं करेगा, और फिर वह कहता है कि मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूं। Let's see how. We had said that the whole law can be seen in 3 sections. Firstly, Jesus fulfilled the moral law. That's the 10 commandments through exemplary living. तो आइए देखें कैसे। हमने कहा था कि पूरी व्यवस्था को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहले यीशु ने नैतिक व्यवस्था को पूरा किया, आदेशों को, जो कि 10 आज्ञाएं हैं, एक उदाहरण का जीवन जीते हुए। We often talk about his death and resurrection, but he fulfilled the moral law by the way he lived his life. He's the only one who never committed a sin. He's the only one who fulfilled the 10 commandments and never failed. He lived a perfect life. He fulfilled the moral law by his perfect obedience, something no one else could ever do. हम अक्सर उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान की बातें करते हैं, पर जिस तरह उसने अपना जीवन जिया, उसके द्वारा उसने नैतिक व्यवस्था को पूरा किया। वह एक था जिसने कोई पाप नहीं किया, वह एक था जिसने 10 आज्ञाओं का पालन किया और कभी गलती नहीं की। यीशु ने एक सही जीवन जिया, उसने अपनी अचूक आज्ञाकारिता से नैतिक व्यवस्था को पूरा किया, वह जो कभी कोई नहीं कर सकता था। He fulfilled the ceremonial laws. You know, the law required animal sacrifice for atonement of sins. Hebrews 10 verse 1 to 4 says this. He reminds us that those sacrifices were incapable to take away sins. The law is only a shadow of the good things that are coming, not the realities themselves. For this reason, it can never, by the same sacrifices repeated endlessly, year after year, make perfect those who draw near to worship. But those sacrifices are an annual reminder of sins, because it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. Jesus came as the one perfect sacrifice once and for all. उसने विधि संबंधित व्यवस्था को भी पूरा किया। पापों के प्रायश्चित के लिए व्यवस्था की मांग थी जानवरों की बलि चढ़ाना। इब्रानियों 10 1 से 4 हमें याद दिलाता है कि वो बलिदान पाप को नहीं हटा सकते थे। व्यवस्था सिर्फ आगे आने वाली अच्छी चीजों की छाया मात्र है, ना कि खुद असलियत। इसलिए साल दर साल दोहराए जाने वाले बलिदान आराधना करने वालों को कभी सिद्ध नहीं कर सकता, पर वो बलिदान हर साल पाप की याद दिलाते थे, क्योंकि बैल और बकरियों के लहू से पाप का धुलना नामुमकिन है। यीशु एक सिद्ध बलिदान के रूप में आया, हमेशा के लिए। Hebrews 10:9, then he said, "Here I am, I have come to do your will." He sets aside the first to establish the second. इब्रानियों 10:9 में कहता है, फिर यह भी कहता है कि देख मैं आया हूं ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। निदान वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त कर सके।
Now let's look at the laws linked to the priesthood and the entry into the tabernacle and the presence of God. You know, in the temple there was a veil. The Gospels tell us that when Jesus died on the cross, the veil was torn in two. So what do we make of this? This tearing of the veil at the moment of Jesus's death dramatically symbolized that his sacrifice was sufficient atonement for sins. आइए हम याजक संबंधित व्यवस्था और तंबू में प्रवेश को और परमेश्वर की उपस्थिति को देखें। अब हम सब जानते हैं कि मंदिर में एक पर्दा था। शास्त्र हमें बताती है कि जब यीशु क्रूस पर मारा गया तो वो पर्दा दो भाग में फट गया। तो हम इसका क्या अर्थ निकालें? यीशु की मृत्यु के समय पर्दे का फटना यह इशारा करता था कि यह बलिदान पापों के प्रायश्चित के लिए काफी है। It signifies that now the access to the Holy of Holies was open for all people, for all time, for both Jew and Gentile. The veil was torn. God had moved out of that place, never again to dwell in a temple made with human hands. Jesus was the only one who could make the way for all mankind into the presence of God. यह बताता था कि अब पवित्र स्थान सभी के लिए खुला है, हमेशा के लिए, यहूदियों और गैर यहूदियों दोनों के लिए। पर्दा फट गया था और परमेश्वर उस जगह से बाहर आ गया था ताकि दोबारा मनुष्य के हाथों से बनाए मंदिर में कभी ना रहे। यीशु ही एक ऐसा है जो पूरी मानव जाति के लिए परमेश्वर की ओर जाने का रास्ता तैयार कर सके। Hebrews 9:11, but when Christ came as high priest of the good things that are now already here, he went through the greater and more perfect tabernacle that is not made with human hands, that is to say, is not a part of his creation. इब्रानियों 9वां अध्याय और 11 वचन, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े बड़े सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं था, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, वह दिखाई देने वाला मंदिर अब आराधना का प्रमुख केंद्र नहीं रह गया था। अब मसीह खुद आराधना का प्रमुख केंद्र है। वह वही स्थान है, तंबू और मंदिर है, जहां हम परमेश्वर से मिलते हैं। So that's why Hitesh just said the physical temple ceased to be the geographic center of worship. Now Christ himself is the center of worship. He is the place, the tent and the temple where we meet God. And Jesus also set aside the cleanliness laws and the food laws. On one occasion, the Pharisees and the teachers of the law said to Jesus, why is it that your disciples don't follow the laws of cleanliness? And in Mark 7:18, 19, Jesus said, don't you see that nothing that enters a person from outside can defile them? For it doesn't go into their heart, but into their stomach and then out of the body. In saying this, Jesus declared all foods clean. And so he sets aside these laws. यीशु शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है, खाने पीने के नियमों को भी रद्द कर देता है। एक बार फरीसियों और व्यवस्था के शिक्षकों ने यीशु से कहा, तेरे शिष्य शुद्धता के नियमों का पालन क्यों नहीं करते? मरकुस 7वां अध्याय और 18वां और 19 में वह कहता है, क्या तुम नहीं देखते कि कोई भी वस्तु जो किसी व्यक्ति में बाहर से भीतर जाती है, वह उसे दूषित नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके हृदय में नहीं, उसके पेट में जाती है और फिर पखाने से होकर बाहर निकल जाती है। ऐसा कहकर उसने खाने की सभी वस्तुओं को शुद्ध कह दिया। वह राज्य संबंधित व्यवस्था को रद्द कर देता है। So now he also sets aside the civil laws. Matthew 21:43, and let's end with that. Therefore I tell you that the kingdom of God will be taken away from you and given to a people who will produce its fruit. Who produces its fruits. He ushers in the kingdom of God, a new nation, a people from all tribes and languages. वह राज्य संबंधित व्यवस्था को भी रद्द कर देता है। मत्ती 21वें अध्याय और 34वीं कलम में कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, परमेश्वर का राज्य तुमसे छीन लिया जाएगा और वह उन लोगों को दे दिया जाएगा जो उसके राज्य के अनुसार बर्ताव करेंगे। So he fulfilled the sacrificial law, he fulfilled the ceremonial law, he fulfilled the civil laws. तो उसने जो है सारे नियमों को, नैतिक राजकीय सारे नियमों को उसने पूरा कर दिया। He has done it. It is finished. The door is now open for us. उसने पूरा कर दिया है, ये खत्म हुआ है अब। The new way is the way of grace. नया मार्ग अब अनुग्रह का मार्ग है।
So today we've seen that the law is good, but man was incapable. Jesus fulfilled the law, and we saw how he has fulfilled the law for us. तो आज हमने देखा कि व्यवस्था अच्छी थी, मनुष्य काबिलियत नहीं रखता था, लेकिन यीशु आया और यीशु ने नियमों को कैसे पूरा किया. Now I want us to go into breakout rooms. अब मैं चाहता हूं कि हम जो है ब्रेकआउट रूम में बट जाए. And I want us to look at two simple questions that you can discuss with the people in your group. और मैं चाहता हूं कि जिस किसी भी समूह में आप बढ़ जाए, उसमें दो ये प्रश्न हैं जिसको लेकर आप चर्चा करें. The purpose of this breakout room is not to see how doctrinally clever everyone is. तो मकसद इस चर्चा का ये नहीं है कि बाइबल की शिक्षाओं में कौन कितना माहिर है. But the questions are to make us reflective and to see what do we really see it? How have we seen law, and how do we actually see it? Not what the correct answer is, but how do I genuinely see it in my life and in our church? तो सही या गलत उत्तर नहीं है इसका. हमें जब इस प्रश्नों का उत्तर देने की प्रयास करें हम, तो ये देखें कि हम इस नियम को कैसे देखते हैं, हम हमारे जीवन में ये नियम कैसे काम करता है, हमारे जीवन में इन नियमों का क्या दर्जा है. Just two questions. दो प्रश्न है. Firstly, what did you learn new from this session today? सो पहले तो ये कि क्या है वो नई बात जो आप यहां से सीखे. And second, how do you see law today for your own life? How do you view law, and why do you view it the way you view it? Not the correct answer, but how you genuinely see it. Do you see law as a burden? Do you see law as absolutely necessary? How do you view it? तो दूसरा प्रश्न है कि आज आप व्यवस्था को किस नजरिए से देखते हैं. तो क्या वो नियम एक बोझ है आपके लिए, क्या है वो आपके लिए नियम, उसके बारे में चर्चा करें. So nice to try and do this conference online. कितना अच्छा लग रहा है देखकर कि हम इस तरह से सम्मेलन को कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से. If we were there in person, I would have said, hello. यदि हम व्यक्तिगत रूप से वहां पर होते तो मैं कहता हालेलुया. I would have said hi to Jonas, Baba James. I would have said hi Jonas and James, my friend from Bangalore. Hi. ओके, जोनस को हाय कहते दिल में हालेलुया रखकर, और फिर बाद में बेंगलोर से जो जेम्स है उनसे भी मिलकर मैं हाय कहता, हेलो कहता. And from Kerala, Suresh, ayyo, nice to see you. और फिर मैं केरला से सुरेश को देखता और कहता, अयो देखकर कितना अच्छा लगा तुम्हें. And Darshan, आप भी चंडीगढ़ from the north. So good to see you. दर्शन, छत्तीसगढ़ से आपके भी दर्शन पाकर कितना अच्छा लग रहा है. But I want to say it is such a joy to be able to come together like this and see each one of you. लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कितना बड़ी आनंद की बात है कि इस तरह से सबको मैं देख पा रहा हूं. Wasn't Samir super duper? समीर ने कितना बढ़िया रीति से हमें सिखाया है कि नहीं. He is such an amazing gift to us as a community of churches. कलीसियाओं का समूह होने के नाते हमारे लिए वो कितना अद्भुत वरदान है हमारे बीच में. And we are excited to have 219 churches on this journey to see thousands of lives transformed through hundreds of churches in tens of nations. और हम उत्साहित थे 219 कलीसियाओं को पाकर इस यात्रा पर, जहां पर हम 10 राष्ट्रों में सैकड़ों कलीसियाओं के द्वारा हजारों जीवनों को परिवर्तित होते हुए देखना चाहते हैं. We are so excited. हम कितने उत्साहित हैं. Okay, so in this brief time, I want to share a few thoughts on this apostolic team. This is the deadly gang that we have. और कुछ जो मिनट है हमारे पास में, उसमें मैं आपको हमारी प्रेरिताई के समूह के बारे में कुछ बताना चाहता हूं. ये है वे भयंकर गैंग हमारे. And we spend time seeking the Lord, praying, chatting, and talking and seeking God to serve us as a commission movement in India and beyond.
और एक कमीशन का समूह होने के नाते हम भारत में और बाहर भी हम मिलकर प्रार्थना करते रहते हैं, चर्चा करते हैं और विचार विमर्श करते हैं। And some of the things is what are our priorities? What do we do, and how do we serve all the churches and new churches that have just been adopted, churches that have been there with us for many years? What is our priorities that we as a team are trying to accomplish in this season ahead? और हम एक प्रेरिताई का समूह होने के नाते हम ये चर्चा करते रहे हैं कि हमारी प्राथमिकता है क्या है, कौन सी बातें महत्व होनी चाहिए, जो हम नई कलीसियाओं को हम अपना रहे, गोद ले रहे हैं, और जो कलीसिया हमारे साथ रही है कई समय से, अरसे से, इस मौसम में हमने क्या करना चाहिए इन सब के लिए। Brothers and sisters, we are not experts and we are not professionals. भाइयों और बहनों, हम तो माहिर नहीं है और हम कोई इसमें महारती पाए हुए नहीं है। We are on a journey and learning ourselves how to handle this expanding group of churches that is reaching the world for Jesus. और हम खुद जो है एक सीखने के अनुभव से आगे गुजर रहे हैं, एक यात्रा पर है कि किस तरह से ये बढ़ती हुई कलीसिया का समूह जो आगे विश्व पर असर कर रहा है, किस तरह से इसे संभालना है और किस तरह आगे चलना है। So for now, we think there are perhaps three general areas where we want to focus on. That is apostolic extension, overseeing churches, and sure team action. और अभी के लिए हमारे पास ये तीन हमने रखे, तीन महत्वपूर्ण बातें जिसकी ओर हम ध्यान देना चाहेंगे। वो है प्रेरिताई रूप से फैलाव करना, प्रेरिताई वरदान का, दूसरा है कलीसियाओं की देखरेख करना, और तीसरा है जो श्योर टीम कार्य करती हुई। If you're new here among us, please get familiar with the sure team action plans. और यदि आप हमारे बीच में नए हो तो ये जो श्योर टीम, श्योर समूह का जो योजना है, कार्य का योजना है, इसके बारे में आप पहचान बना लीजिए। Okay, apostolic expansion, what does that mean? प्रेरिताई रूप से फैलाव करना, इसका अर्थ क्या है? That really means we want to try and spend time exploring new cities, new countries, new towns, new villages for the possibility of seeing new churches started. इसका मतलब ये है कि हम एक तरह से खोज करना चाहेंगे नए शहरों में, नए नगरों में, नए राष्ट्रों में, नए गांवों में, कि किस तरह से हम नई कलीसिया को शुरू कर सकें। This is all to fulfill that great vision or to see thousands of lives transformed in hundreds of churches in tens of nations. ये सब हमारे उस दर्शन को पूरा करने के नजरिए से है, जो है हम दसों राष्ट्रों में सैकड़ों कलीसियाओं के द्वारा हजारों जीवनों को परिवर्तित होते हुए देखना चाहते हैं। We want to start new churches. हम नए कलीसियाओं को शुरू करना चाहते हैं। But when we say we want to, it really means we want to help you as a church, local church leader, start new churches. इसका सच में अर्थ यह है कि हम आपको, आप जो स्थानीय कलीसिया के अगुवे हैं, आपको हम मदद करना चाहते हैं जिससे कि आप नई कलीसियाओं को शुरू कर सके। Sometimes there may be a strategic church plant. और कभी कभार ऐसा भी होगा कि रणनीति अनुसार हम एक कलीसिया को शुरू करेंगे। But mostly we want to come alongside you, hear your story, find your heroes, and support your heroes in planting new churches. लेकिन ज्यादातर हम चाहेंगे कि हम आपकी ओर आकर, आपके बाजू में रहकर आपकी कहानी को सुनना चाहेंगे, आपके जो योद्धा है उनके बारे में सुनना चाहेंगे और आपको समर्थन देना चाहेंगे आपके योद्धाओं के द्वारा नई कलीसियाएं शुरू करने के लिए। Then we want to be concerned about adopting churches. और फिर बाद में हम कलीसियाओं को गोद लेने के विषय में भी हमें नजर बनाए रखना है। And we've had the joy of seeing more than 100 of them added to us recently. और हाल ही में हमारा बड़ा आनंद रहा कि कुछ 100 के लगभग नए कलीसियाओं को हमने अपनाया, गोद लिया। Then we are concerned to see unreached people groups reached with the gospel. और फिर हमारे मन में खास तरह से चिंता है कि ऐसे लोगों का समूह जो है जिन तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है, वहां तक हमें पहुंचाना है। How can we come alongside you as a church, as a leadership,
How can we help you to accomplish that vision? और कलीसिया होने के नाते और आपकी अगुवाई होने के नाते किस तरह से हम आपकी छोर में आकर आपको किस तरह से मदद कर सके इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए। And finally, we cannot forget that Paul reminded the churches we must not forget the poor among us. और फिर अंत में पौलुस ने हमें याद दिलाया कि हमने कभी भी हमारे बीच में जो गरीब दरिद्र है उन्हें नहीं भूलना है। We recognize this is the apostolic mandate that we may need to come alongside churches and various individuals and organizations to find cooperation such that the poor in our community are served and reached and loved. और हमारे लिए ये प्रेरिताई का ये आदेश मिला है हमें प्रेरिताई का कि किस तरह से हम कलीसियाओं के द्वारा जो जरूरतमंदों के बीच में संगठनों के साथ में मिलकर हम किस तरह से हमारे बीच जो जरूरतमंद है उन तक हम पहुंच सके। Those are some thoughts in our hope to have apostolic expansion. तो प्रेरिताई रूप में फैलाव या असर करने के संदर्भ में ये कुछ हमारे बीच कुछ सोच है। Then we want to have an opportunity to serve you by overseeing churches. और फिर हम आपकी सेवा करने का एक मौका देखते हुए हम कलीसिया की देखरेख करने के क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं। This picture at the back really is something, perhaps we've gone a little ahead and we want to help you come and lead and journey on your church's journey in Christ Jesus. और ये पीछे जो तस्वीरें अच्छी तरह से व्यक्त करता है कि हम इस यात्रा में थोड़ा आगे गए हैं और हम आपको मदद करना चाहते हैं, आपकी कलीसिया को, आपकी अगुवाई को, कि आपकी यात्रा में हम किस तरह आपको थोड़ा और आगे ले जा सके। So we want to do that by foundational oversight to check whether the foundations like this wonderful teaching that Samir is bringing about law and grace, how is that being experienced in the leadership and how is that being taught in the church? और हम ये जो शुरुआत करना चाहिए ये है बुनियादी रूप से देखरेख के अनुसार कि किस तरह से, जैसे समीर ने हमें यहाँ पर आज इतने अद्भुत रीति से सिखाया, व्यवस्था और अनुग्रह के बीच में किस तरह हमने जी रहे हैं अनुग्रह में, कि इस बात को लेकर किस तरह आपकी अगुवाई, आपकी कलीसिया इस बुनियाद के क्षेत्र में कैसा कर रही है, हम जांच करना चाहिए और मदद करना चाहिए। We want to help you. हम आपकी मदद करना चाहते हैं। We want to help you by establishing eldership and raising up elders. We believe the plurality of elders makes a church strong and moves it on. और हम धनवृत्ति को उभारना और धनवृत्ति के समूह को नियुक्त करने के द्वारा भी हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि जब समूह होती है धनवृत्ति की, इससे कलीसिया को मजबूती मिलती है और कलीसिया आगे जोरों से बढ़त करती है। We also recognize that all of it must be relational. You must invite us in. You must welcome us. You must desire for us to come and fellowship with you and help us and invite us serving you. और हम इस बात को भी पहचानते हैं कि ये सभी बातें जो है ये रिश्तों के आधार पर है। आपने चाहत रखनी है कि आप हमें बुलाना है कि हमारी मदद के लिए आइए, हमारी सेवा के लिए आइए और इस रिश्ते के साथ में, और आप स्वागत करोगे हमारी सेवा का। And relationships don't happen by chance or just in a one-off meeting. It takes years, and we have been journeying with Jesus and with one another for more than 30 years, and we want you to join us in fellowshipping for the next 30 or 40 years, so long as the Lord keeps us alive. और जो रिश्ते जो है ये अचानक एक ही मुलाकात में नहीं बन जाते हैं, इसके लिए समय लगता, अरसा लगता है, और हम इस यात्रा में रहे हैं यीशु मसीह के साथ में, और हम एक दूसरे के साथ में 30 वर्षों से हम यात्रा में रहे हैं, और हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप भी आओ, हमारे साथ जुड़ जाओ, आने वाले और 30 वर्ष 60 वर्ष के लिए हम मिलकर उन बातों को पूरा करें जो यीशु चाहता है। We want to care for you. We want to give you counsel. We want to hear your counsel. We want to share your care and counsel with other churches. We want to release you into more and more ministry. And together we can do a lot more than we can do by ourselves.
और हम आपकी देखरेख करना चाहते हैं, आपको सलाह मशवरा देना चाहते हैं, उपदेश देना चाहते हैं, बुद्धि देना चाहते हैं। मिलकर हम साथ में कार्य करना चाहते हैं कि हम जितना मिलकर कर सकते हैं एक साथ, उस वो अकेले रहकर जितना कर सकते हैं उससे कई ज्यादा हम मिलकर कर सकते हैं। So apostolic expansion, तो प्रेरिताई रूप से फैलाव या प्रभाव लाना, overseeing and serving the churches, कलीसियाओं की देखरेख करना, उनकी सेवा करना, and sure team action. और अगला है श्योर टीम कार्य में। And we want to do that through send, unify, release, and equip. और हम करना चाहते हैं इन चार पहलुओं के द्वारा। एक तो है सेंड यानी भेजना, यूनिफाई यानी संयुक्त करना एकता में, रिलीज यानी छूट देना, इक्विप यानी लैस करना, तैयार करना। We are thankful to God for God providing us men and a woman who are taking on this challenge to serve us and serve the whole commission family in moving forward as a family to accomplish the vision. और परमेश्वर को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने हमें कुछ पुरुष दिए और एक महिला दी है जिन्होंने इस चुनौती भरे जिम्मेदारी को उठाया है, जिससे कि वो मिलकर हमारे संपूर्ण कमीशन परिवार की मदद कर सकेंगे, सेवा कर सकेंगे, जिससे कि हम उस दर्शन को पूरा कर सके आगे बढ़ते हुए जिसे परमेश्वर ने हमें दिया है। You're going to hear more about this on the last day. और इसके बारे में आपको अंतिम दिन में और ज्यादा जानकारी सुनने मिलेगी। So these are the apostolic priorities that we have understood so far and that we are on a journey learning forward. और ये है जो प्रेरिताई समूह की जो प्राथमिकता है जिसके बारे में मैंने अभी बताया, जो हम सीख रहे हैं, जिसे हम आगे बढ़ते हुए इस यात्रा में होते हुए देखना चाहते हैं। What do we require from you? अभी हम आपसे क्या चाहते हैं? We'd like for you to invite some specific people so that you're recognizing that I am being overseen, I am being served by this particular person, and you're opening your church, your leadership, your understanding in a regular way over the years to come. और हम चाहते हैं कि आपसे कि आप आमंत्रित करें, कि आप कहें कि मैं चाहता हूं ये व्यक्ति, इस वरदान, ये वाला वरदान वाला व्यक्ति मैं चाहता हूं कि मेरी कलीसिया में आए और मेरी मदद करे और मुझे आगे बढ़ने के लिए मेरी सहायता करे, मदद करे, जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूं परमेश्वर में, मेरी कलीसिया दिशा में परमेश्वर ले जाना चाहते हैं। We hope that you will give and contribute. हम आशा करते हैं कि आप देंगे, देने में भी आगे बढ़ेगी, अपना योगदान करोगे। That you will give perhaps monthly into this apostolic extension, and you will give annually, wholeheartedly, to see this kingdom advance into nations and hundreds of churches. और हम चाहेंगे कि आप देने में बढ़ते जाए, आप मासिक रूप से हर महीने दे, या आप साल में एक बार भी आप एक साथ भी दे सकते हैं। दे आप इस प्रेरिताई के फैलाव की जो यात्रा की ओर आप इसे दे, जिससे कि हम उस दर्शन को पूरा कर सके जिसे परमेश्वर ने हमें दिया है। But it also means giving some of your gifted leaders to go serve other churches across the nation or across the world if required. और इसका अर्थ ये भी है कि आप अपने कुछ वरदानित जो अगुवे हैं उन्हें भी आप भेजने के लिए तैयार है, सेवा करने के लिए अलग अलग जगहों पर, अलग अलग क्षेत्रों में, और जरूरत पड़े तो अलग राष्ट्र में भी। What about giving information and data about what's happening, so together we understand how we're all moving ahead and accomplishing what God wants us to do. और इसके बारे में भी कहूं कि आपकी जानकारियां कि कितने या संख्या है, क्या क्या हो रहा है, जो आप बांटने के लिए तैयार रहोगे, जिससे कि हमें इस पूरी जानकारी मिल सके कि मिलकर हम किस तरह से प्रगति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। What about cooperation finally? और अंत में किस तरह से हम एक दूसरे के सहकार्य करें। When a program is presented, take full advantage, join in, ask the questions. How can it be happy? How can you be inviting people? How can you enjoy the programs in your own local churches or your region of churches?
और जब कोई एक तरह से कोई कार्यक्रम जो है वो प्रस्तुत किया जाता है, आप किस तरह से उसके प्रति बर्ताव करते हो? क्या पूरी तरह उसे अपनाते हो, उसका फ़ायदा उठाते हो वो कार्यक्रम जिसे प्रस्तुत किया जाता है आपके स्थानीय कलीसिया में हो, चाहे सामूहिक रूप से? आप किस तरह से सहकार्य करते हो पूरी तरह से संपूर्ण हृदय से? And make it a point to attend these events. So somehow in the breakout rooms, get to say hello to somebody new, make a friend across the nation, perhaps connect with another church, another language, another person who is also struggling and on the journey to see these thousands of lives in tens of nations, in hundreds of churches. और इस जैसे जो सम्मेलन है, कार्यक्रम का पूरा फायदा उठाए, ब्रेकआउट कमरे में किसी के साथ बात करे, हेलो कहे, दूसरे भाषा के किसी क्षेत्र के व्यक्ति से बातचीत करे कलीसिया के, और रिश्ते बना ले, जिससे कि आप भी रिश्ते में मिलकर पहचान सको कि हम मिलकर इस यात्रा में जा रहे हैं, जहां पर हम हजारों जीवनों को परिवर्तित होते हुए देखना चाहते हैं, सैकड़ों कलीसियाओं के द्वारा। So I would say maybe get out when we get into our breakout rooms, perhaps discuss with one another how are we inviting, how are we thinking forward, how is this thing working, and perhaps you may come up with some questions. Send those questions back to us, send some solutions along with them, so we can guide ourselves forward in seeking the kingdom ahead. और जैसे आप ब्रेकआउट कमरे में जाओगे, वहां पर बातचीत करें इस संदर्भ में, किस तरह से आप आमंत्रित करने के बारे में क्या कदम बढ़ा रहे हो, किस तरह से आपकी समस्या है तो आप अड़चन है तो वो भी बताएं, और उसके साथ में आप हल भी हमारे पास में बताएं, जिससे कि हम आपको पूरी तरह से मदद कर पाए उस अनुसार। Perhaps are there some expectations you have? Share and discuss in the group, and say perhaps there are certain expectations from the apostolic teams or the teams that are around. Perhaps we could consider those and figure out how we can move forward together. और आपके ब्रेकआउट कमरे में आप चर्चा कीजिए कि आपकी प्रेरिता के समूह से क्या अपेक्षा है या इतर समूह से क्या अपेक्षा है, आप उसके बारे में बताएं, जिससे कि हम भी बातचीत करके आपको उस अनुसार मदद पहुंचा सके। If we were all together, perhaps I could have told you a couple of stories and some exciting stories, but there's no time. I must hand over to Amit. But thank you for listening. God bless you. May the kingdom of God advance forcefully as forceful men and women move forward for Jesus. और शायद अगर काश यदि हम मिलते आमने सामने, मैं आपको कुछ कहानियां बताता, लेकिन हमारे पास में अभी समय नहीं है, तो मैं जल्दी अमित के हाथ में सौंपना चाहूंगा कि हम मिलकर हम पुरुष जो है जोरदार, असरदार, हावी होने वाले, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने वाले पुरुष लोग होने के नाते हम आगे बढ़ते चले जाए। जय मसीह। जय मसीह। Good evening, everyone. सभी को शुभ संध्या। As I was praying and thinking about this conference, और जब मैं प्रार्थना कर रहा था, सोच रहा था इस सभा के बारे में, to be honest, my thinking was kind of overshadowed by all that what happened in the last year. और मैं सही बताऊं तो मेरी जो सोच है एक तरह से उसके ऊपर परछाई आ गई कि जो भी कुछ हुआ था पिछले साल के अंदर। And my eyes fell on a particular scripture, और मेरी आंखें एक खास वचन के ऊपर गईं, which I think we are all familiar with, but I'm going to actually preach from the Message version. और हम सब जानते हैं इस वचन के बारे में, लेकिन मैं अंग्रेजी में मैसेज वर्जन से बताऊंगा। But I won't do that straight away. I'm going to ask Amit to read it in Hindi, and when I explain it, I will read it from the Message version. और मैं चाहूँगा कि अमित हिंदी में पढ़ें पहले, उसके बाद में मैसेज, इंग्लिश के मैसेज वर्जन से आपको बताऊंगा। मत्ती 11:25 से लेकर के 30 तक। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ,
और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। Amen. I'm just going to pray and ask the Holy Spirit to help us. मैं प्रार्थना करूंगा और चाहूंगा कि पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। Spirit of God, we so need you in these days. प्रभु की आत्मा, हमें तेरी बहुत ज़रूरत है इन दिनों में। Lord, as I unpack the scripture, प्रभु, जैसा कि मैं इस वचन से और गहराई से बताऊं, I ask for your help and your wisdom. पिता, मैं चाहता हूं तेरी मदद और तेरे ज्ञान के लिए। We need you so much, Holy Spirit. पवित्र आत्मा, हमें तेरी बहुत ज़रूरत है। Help my brothers and sisters as they listen, and Lord, encourage them and bring them that fresh word that is coming from you. और पिता, हमारे बहनों भाइयों की मदद कर, जैसे कि वो सुनते हैं और वो जो एक तरह से नया वचन उनके मन के अंदर डाल। I ask this in Jesus' name. मैं यीशु के नाम में मांगता हूँ। Let me just give you a little bit of background of this passage. और मैं कुछ बताता हूँ कि इससे पहले क्या हुआ और उसके इस It दौरान all क्या हो रहा है। it's all started with one question from another man. और इस सब की शुरुआत होती है एक प्रश्न से, जो कि कोई पूछता है। You would know that the Malachi is the last book in the Old Testament. और आपको पता है कि मलाकी आखिरी पुस्तक है पुराने नियम में, And the Gospel of Matthew is the first book in the New Testament. और जो मत्ती का सुसमाचार है वो पहली पुस्तक है नए नियम में। There's a 400 years gap between Malachi and the book of Matthew. और करीबन 400 साल हैं मलाकी और मत्ती की पुस्तक के बीच में। But as you understand that God used to send prophets to speak to his people. और हम जानते हैं कि प्रभु नबियों को भेजता था कि ताकि वो अपने लोगों से बातचीत करें। But then we see a long gap. God didn't send any prophets to speak to his people for 400 years. और फिर हम देखते हैं कि एक तरह से 400 साल बीत जाते हैं और प्रभु किसी नबी को नहीं भेजता है अपने लोगों से बात करने के लिए। And then comes John the Baptist. और फिर हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा वाला आता है। Some says John the Baptist is the last prophet of the Old Testament. और कुछ लोग कहते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आखिरी नबी है पुराने नियम का। He announced about the coming of the Lord Jesus Christ. और वो घोषणा करता है यीशु मसीह के आने के बारे में। He did many other things. He baptized many people, including Jesus himself. और उसने कई कार्य किए और उसने बपतिस्मा दिया कई लोगों को और यीशु मसीह को भी। He preached the message of repentance. और उसने पश्चाताप का संदेश लोगों को बताया। He also confronted the authorities. और जो अधिकार में जो लोग थे उनके खिलाफ उसने आवाज He उठाई। used some strong words to describe their behavior. और उसने कई कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया। Some we would dare not use it. और कई शब्द, ऐसे शब्द हम लोग इसकी जरूरत नहीं करेंगे इस्तेमाल करने में। When he was put in prison, और जब उसे बंदी गृह में डाला गया, he heard about the deeds of the Messiah. और उसने मसीह के कार्यों के बारे में सुना। He sent his disciples and asked him this question. और उसने अपने चेलों को भेजा और कहा कि इस प्रश्न को पूछो, Are you the one who is to come, or should we expect someone else? उसने ये प्रश्न पूछा कि क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरे की बाट जोएं। Now, John the Baptist was a fiery preacher. और हम जानते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक जोरदार प्रचारक था। Many people repented and turned to God because of his preaching. और कई लोगों ने पश्चाताप किया और मुड़े और प्रभु के पास आए उसके He प्रचार did सुनकर। great exploits for the kingdom of God. और उसने कई महान कार्य किए प्रभु के राज्य के लिए। And then he was put in prison. और उसको फिर बंदी गृह में डाल दिया गया। And then the questions started coming in. और फिर प्रश्न आते गए। He's the one who looked at Jesus and said, Here comes the Lamb of God. I'm not worthy to untie the strap of his sandals. और जब उसने यीशु को देखा तो उसने कहा कि ये परमेश्वर का मेमना आता है और मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं उसके जूते के बंधनों को खोलूं। He was absolutely sure about Jesus is the Messiah. और वो जानता था कि यीशु मसीहा ही है। When pressure came upon him, he wilted under the pressure. लेकिन जब दबाव उसके ऊपर आया तो उस दबाव में वो एक तरह से दब गया। Are you the one who is to come? उसने ऐसा पूछा कि क्या तुम ही हो जो आने वाले थे, Or should we expect someone else? क्या हम दूसरे का इंतजार करें? Look at his thinking. उसकी सोच को देखिए। You know, brothers and sisters, we have done some mighty things for the kingdom of God, haven't we? बहनों भाइयों, हमने कई महान कार्य किए हैं प्रभु के राज्य के बारे में, ऐसा ही है ना? Last year, I'm sure
all of us had many questions about God, you, world, etc. और मुझे पता है कि पिछले साल हमारे सामने कई प्रश्न होंगे प्रभु के बारे में, खुद के बारे में, दुनिया के बारे में। I have 3 simple points from this passage Amit read earlier. और मेरे पास सिर्फ 3 बातें हैं जो हमने पढ़ी हैं यहाँ से, इस वचन से। Pressure and situations and difficulties in life makes us wonder about things about God or the existence of God. और जो दबाव है और जो परेशानियां हैं इस दुनिया में, वो कभी कभी हमें उस स्थान पे लेके आती हैं, हम परमेश्वर के बारे में प्रश्न पूछने लगते हैं। I want to draw our attention to 3 simple points. मैं चाहता हूं हम अपना ध्यान इन 3 बातों पर लगाएं। Come to him. The first point is come to him in humility. और पहली बात है उसके पास आओ विनम्रता में। Verse 25 and 26 says like this. और 25 और 26वां वचन ऐसा कहता है, Abruptly Jesus broke into prayer. I'm reading from the Message version. Abruptly Jesus broke into prayer. Thank you, Father, Lord of heaven and earth. You have concealed your ways from sophisticated and know-it-alls, but spell them out clearly to ordinary people. Yes, Father, that's the way you like to work. और फिर उसी समय यीशु ने प्रार्थना की और कहा कि हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगता है। God hasn't revealed everything to us, प्रभु ने हमें सब कुछ नहीं बताया है, but he has definitely revealed some things to us. लेकिन उसने हाँ कई चीज़ें हमें ज़रूर बताई। We have heard about great scientists and people with amazing gifts of yesteryears. और हम जानते हैं कई ऐसे ज्ञानियों को और जो वैज्ञानिकों को जो पिछली सदी में आए हैं, रहे हैं। But today when you look at some of the people with computer technology and they are able to have great mind to do things, we hear about artificial intelligence is all a creation of man. और जब हम देखते हैं कि जब हम सुनते हैं कि जो बुद्धिजीवियों के बारे में, जो वैज्ञानिकों के बारे में और जो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी वगैरह के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि वाकई ये बहुत ही अच्छा है। Every generation brought forth men and women of great capacity and caliber. और हर एक सदी में, हर एक पीढ़ी में कई ऐसे महान व्यक्ति आए हैं। That doesn't mean that we can claim to know everything what God has done. और इसका ये मतलब नहीं है कि हमें सब बातों का ज्ञान है जो प्रभु ने बातें कही हैं उसके बारे में। I as a leader should never take that position that know it all. और मैं एक अगुवे के नाते में एक ऐसा स्थान नहीं ले सकता कि हाँ मुझे सब कुछ आता है। You should never ever come to that place of I know it all. और हमें उस स्थान पे नहीं आना जब हम ऐसा कहें कि हाँ मुझे तो सब कुछ आता है। The something that attracts our Lord is our humility. और जो आकर्षित करती है प्रभु को हमारी ओर, वो है विनम्रता। You may be leading a small church or a big church. आप चाहे छोटी कलीसिया बड़ी कलीसिया की अगुवाई कर रहे हो, It doesn't mean that you know it all. और इसका यह मतलब नहीं है कि आपको सब कुछ पता है। I think God automatically attracts to our humility. और प्रभु आकर्षित होता है जब हम विनम्र होते हैं। Let us not pretend that we know the answer for everything. और आइए हम लोग इस तरह का व्यवहार ना करें कि हम ऐसा कहें कि हाँ हमको तो सब कुछ पता है। Do I make mistakes? क्या मैं गलतियां करता हूँ? Absolutely yes. हाँ करता हूँ, Because I don't know certain things. क्योंकि मुझे कुछ चीजें नहीं पता। And God allows us to learn in that process. और प्रभु हमें उस स्थिति में और कुछ सिखाता है If we keep a humble heart. अगर हम विनम्र हृदय रखें तो। And I just want to submit this to you, brothers and sisters. और मैं आपके अधीन करता हूँ इस बात को। You may be having great Bible knowledge. आपको शायद पवित्र शास्त्र का बहुत अच्छा ज्ञान हो, You may be very eloquent. चाहे आप अच्छे से बोल पाते हो, You may even have a superior wisdom. हो सकता है आपके पास या बहुत ही ऊंचे दर्जे का ज्ञान हो, But that doesn't mean that we know it all. और इसका यह मतलब नहीं है कि हमको तो सब कुछ आता है। But
It has been preserved for those who are meek and humble in the kingdom of God. और उनके लिए रखा गया है ज्ञान जो कि प्रभु के राज्य में नम्र है। I think we need to walk humbly before God at all times. हमें प्रभु के सामने विनम्रता में चलना है। Last year, 2020 has taught us many things, I'm sure. और पिछले साल 2020 ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। There are many things that was totally out of our control. और कई चीज़ें हमारे हाथ के परे थी, हम लोग कुछ कर नहीं पाए। I realize how small and helpless I was. और मुझे ऐसा लगा कि कितना छोटा और मेरे अंदर बहुत कमी है। Only God knows all things. प्रभु ही सब कुछ जानता है। If you hold to that position of being poor in spirit, He will reveal things to us. अगर आप ऐसे स्थान पर रहें जहाँ पर आप आत्मा में कमी है आपके अंदर, तो हम सही स्थान पर हैं। Number 2, दूसरी बात, come to Him in relationship. उसके पास संबंध के द्वारा आइए। Verse 27, just one verse talk about relationship, and this is so important in this passage. और 27वां जो वचन है वो संबंध या रिश्ते के बारे में बताता है, बहुत ही ज़रूरी है। Jesus returned talking to the people, but now tenderly, the Father has given me all these things to do and say. This is a unique father-son operation, coming out of father and son intimacies and knowledge. No one knows the Son the way the Father does, nor the Father the way the Son does. But I'm not keeping it to myself. I am ready to go over it line by line with anyone willing to listen. मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। Such an important verse in this passage. और बहुत ही खास वचन इस जगह पर। In one verse, 5 times the word Father repeated. और एक ही वचन में 5 बार पिता का शब्द इस्तेमाल हुआ है। 4 times in one verse the word Son repeated. और 4 बार पुत्र का शब्द इस्तेमाल हुआ है। I think I'm included, most of us, when we talk about Matthew 11, we jump straight into verse 28 to 30, because that is where we feel more ministered. और हम में से कई लोग जब मत्ती 11 पढ़ते हैं तो ज़्यादातर हम 28वें वचन पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहां पर हमें शांति मिलती है। I think many of us have overlooked verse 27. और कई लोगों ने 27वें वचन को ध्यान से नहीं देखा। Our natural tendency is that what can I get? So we would rush into come to me, all those who are weary, because we feel weary and tired most of the time. और हम में से कई लोग देखते हैं कि हमें क्या मिल सकता है, इसीलिए 28वें वचन में जब लिखा है कि हे परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा, तो हमें वो वचन अच्छा लगता है। But the other day when I looked at it and I felt something that the Lord revealed to me. और जब पिछले दिन मैंने इन वचनों को देखा तो मुझे ऐसा लगा प्रभु मुझसे कुछ बातें कर रहा है। I felt this passage is talking about relationship. और मुझे ऐसा लगा ये जो वचन है वो संबंध के बारे में बात कर रहा है। Relationship between father and son. जो रिश्ता, जो संबंध पिता और पुत्र के बीच में है। And the Message version puts it so beautifully. He said, Jesus resumed talking to the people, but now tenderly, the Father has given me all these things to do and say. This is a unique father-son operation, coming out of father and son intimacies and knowledge. No one knows the Son the way the Father does, nor the Father the way the Son does. But I am not keeping it to myself. I am ready to go over it line by line with anyone willing to listen. और ऐसा लिखा है कि हे मेरे पिता ने मुझे सब सौंपा है, और इस रिश्ते में और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। Are you willing to listen? क्या आप तैयार हैं सुनने के लिए? I think the Lord will speak to us from this very verse. और प्रभु हमसे इसी वचन से बात करेगा। Many of us, including myself, to be honest, are very tired and quite burdened by leadership challenges. और हम में से कई लोग और मैं भी काफ़ी थके हुए हैं और बोझ से दब गए हैं, जो अगुवे के सामने जो परेशानियां होती हैं। Many of us are weary and some even may wanting to quit. और हम में से कई लोग थके हुए हैं और सोच रहे हैं कि मैं इन सब चीज़ों को छोड़ दूं।
This very verse indicates that Jesus could have actually give it a quit when all the pressures were coming upon him. और इस वचन से ऐसा भी लगता है कि शायद यीशु सब कुछ छोड़ देता, क्योंकि बहुत सारा बोझ उसके ऊपर आ रहा था। But he is not asking us to quit. He is asking us to understand some basic principle here. और वहाँ वो हमसे छोड़ने के बारे में बात नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ खास मूल सिद्धांतों के बारे में बात कर रहा है। I think he operated from a place of relationship. और वो एक तरह से रिश्ते के स्थान से बात कर रहा है। Ask yourself a question today. और अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, How are you doing in your relationship with the Father? और आप परमेश्वर के साथ संबंध में किस तरह से कार्य Jesus कर रहे हैं? carried the burden of sin for the whole world. और यीशु ने पूरी दुनिया के लिए पाप का बोझ उठाया, And I believe he could do that only because he had that relationship with the Father. और वो इसीलिए कर पाया क्योंकि उसका रिश्ता पिता के साथ था। And I do know many of us, we operate from a place of insecurity because we are not secured in our Father in the first place. और हम असुरक्षा महसूस करते हैं क्योंकि हमारी सुरक्षा पिता के साथ नहीं है। If we understand that, like Jesus and his Father, he could carry such a big burden of the whole world upon him because he knew the Father well and Father knew the Son well. और यीशु इसलिए कर पाया, उसने पूरी दुनिया का बोझ इसलिए उठाया क्योंकि वो पिता को अच्छे से जानता था और पिता पुत्र को जानता था। Our fears are as a result of our lack of relationship with the Father. और हमारा जो डर भी बताता है कि हमारा रिश्ता पिता के साथ अच्छा नहीं है। Brothers and sisters, this is so vital in our leadership. और ये एक अगुवे होने के नाते हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना। We are now over 200 churches, that means over 200 leaders. और हम जानते हैं कि हम करीबन 200 से ज़्यादा कलीसियाएं हैं, इसका मतलब हम 200 से ज़्यादा अगुवे हैं। We have a vision, we have a dream for 1,000 churches in the next 10 years. और हमारा एक तरह से सपना है कि अगले 10 साल में हम 1000 कलीसियाएं हो जाएं। But this is so vital in our moving forward. और यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है अगर हमें आगे बढ़ना है तो। We will not go very far with hundreds of insecure leaders. और हम आगे ज़्यादा बढ़ नहीं पाएंगे अगर हमारे पास कई सैकड़ों असुरक्षित अगुवे हों तो। You know, I would not be very happy that we have 1,000 churches with 1,000 insecure leaders. और मुझे खुशी नहीं होगी अगर हमारे पास 1000 कलीसियाएं और 1000 असुरक्षित अगुवे हैं। I don't think God would be very pleased with that kind of approach. और मुझे लगता है कि प्रभु भी इस बात से खुश नहीं होगा। I would rather have all of us, 1,000 plus leaders, secure in the love and the security in Father God. और मुझे बहुत खुशी होगी अगर हम पिता के साथ अपने संबंध में सुरक्षित रहें, उसके प्यार में सुरक्षित रहें। Ask yourself a question. अपने आप से प्रश्न पूछिए, How are you handling your life at this stage? किस तरह से अपने जीवन को चला रहे हैं इस From a वक्त? place of security क्या आप सुरक्षा के स्थान पर हैं or a place of insecurity? या आप असुरक्षित हैं? And I think we all need to come to that place of security. और हम सभी को उस सुरक्षित स्थान पे आना That है। leads to my third and final point. और वो हमें हमारा तीसरा जो मेरा बात है, Come वहाँ to पे him, कहता है, those who are burdened. आओ जो बोझ से दबे हो उसके Come to पास। him, those who are weary and tired and worn out. और आओ जो बोझ से दबे हुए हो, थके हो, उसके पास आओ। He set a model for us. I and my father have a wonderful relationship, and if you have that relationship with me, you will find a way, a solution for your problems. और उसने ऐसा बताया कि मेरा और मेरे पिता का संबंध अच्छा है, और अगर तुम्हारा संबंध मेरे साथ अच्छा है तो तुम्हारी परेशानियां Are you ठीक हो tired? जाएंगी। Are you tired and burned out? क्या आप थके हुए हैं और बोझ से दबे हैं? Jesus says, "Come to me. यीशु कहता है मेरे पास आओ Get away with me, and you will recover your life." और प्रभु कहता है कि मेरे साथ आओ और चलो और तुम्हारा जीवन I सुरक्षित will रहेगा। show you how to take a real rest. और यीशु कहता है कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि सही मायने में जो शांति है वो क्या है। Walk with me and work with me. और यीशु कहता है कि मेरे साथ चलो, मेरे साथ कार्य करो। He's saying, watch how I do it. और कहता है कि देखो मैं कैसे करता हूँ। Learn the unforced rhythm of grace. और कहता है कि देखो कि अनुग्रह में कार्य कैसे करता I है। love that line. Learn the unforced
rhythm of grace. और ऐसा कहता है कि सीखो किस तरह से बिना बोझ के तुम अनुग्रह में चल सकते I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. हो। और कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई भी एक तरह से भारी चीज नहीं रखूंगा या तुम्हें जो तुम उठा ना पाओ। Keep company with me and you will learn to live freely and lightly. और यीशु कहता है कि मेरे साथ ही रहो ताकि तुम आजादी से चल पाओ और हल्के में चल पाओ। That's what verse 28 to 30 from the Message version. और अंग्रेजी में मैसेज वर्जन में कुछ इस तरह से लिखा है, वचन 28 से लेकर 30 There are तक। three things which actually Jesus says there. और यहाँ पर 3 बातें यीशु कहता है। Come, कहता है आओ, take, ले लो, and learn. सीखो। The Pharisees in those days, they were not very good in telling people to come. They were good in telling people to do. और फरीसी लोग उस समय के जो फरीसी थे वो ज़्यादातर अच्छे नहीं थे इस बात को कहने में कि आओ, ज़्यादातर वो कहते थे कि करो। They were telling, do this, do this, do this in order to please God. और वो कहते थे कि ये करो, ये करो, ये करो ताकि प्रभु तुमसे प्रसन्न रहे। But you and I know this. True salvation is not found in doing, but being with that person of Jesus Christ. और हमें और आपको पता है कि जो प्रभु के साथ हमें अनंत काल का जीवन करने से नहीं मिलता है, लेकिन उसके साथ रहने से मिलता To come to Him means trusting Him. है। उसके पास आने का मतलब है कि उस पर भरोसा करना। When will the pandemic end? और ये जो महामारी है कब खत्म होगी I don't know, मुझे नहीं पता, but I'm going to trust Him. लेकिन मैं उस पर भरोसा Will I रखूंगा। get the vaccine? क्या मुझे वैक्सीन लेनी है? Maybe, but I'm going to trust Him. लेकिन मुझे उस पर भरोसा रखना। Am I going to trust the vaccine? I'm going to trust Him. I'm going to trust Him. क्या मुझे वैक्सीन पे ट्रस्ट करना है, मतलब भरोसा करना है, या उस पे भरोसा करना है? मुझे उस पे भरोसा Will we be able to become 1,000 churches in 2030? I don't know, but we will work towards that. But I'm going to trust Him. और क्या हम 1000 कलीसिया हो पाएंगे 2030 तक? मुझे नहीं पता, लेकिन हमें उस पर भरोसा करना है। Our life is so fragile in many ways. और हमारा जो जीवन है एक तरह से बहुत ही कह सकते हैं कि टूट सकता है कभी The भी। only way we can make progress is by trusting Him. सिर्फ हम आगे तभी बढ़ सकते हैं जब हम उस पर भरोसा This करें। invitation is open to all those who are exhausted and burdened and really down. और ये जो निमंत्रण है उन सभी के लिए जो कि थके हुए हैं और जो अपने आप को बोझ में महसूस कर रहे हैं। People in those days felt the pressure and burdened under the Pharisees. और उस समय के लोग एक तरह से उनके ऊपर बोझ था, क्योंकि फरीसी लोग के साथ थे वो लोग। Next he said, take my yoke. Take, that's another word. और ये अगली बात है, वो कहता है कि ले लो जो मेरा जो जुआ है वो अपने ऊपर ले लो। There is a very deep experience. और यहाँ पे गहरा अनुभव हमें देखने को मिलता है। When we come to Christ in faith, He gives us rest. और जब हम विश्वास में यीशु के पास आते हैं तो वो हमें एक तरह से आराम देता है। When we take His yoke and learn, we find rest. और जब हम उसका जुआ उठाते हैं और सीखते हैं तो हमें आराम मिलता है। That deeper rest of surrender and obedience और एक तरह से समर्पण और आज्ञाकारिता का जो गहरा विश्राम हमें मिलता produce है। two things. और 2 बातें होती हैं। One is peace with God. और पहली बात प्रभु के साथ शांति। Romans 5:1 says that. रोमियो 5:1 में ऐसा लिखा है। And the next one is peace of God. और फिर कहता है कि प्रभु की शांति। Philippians 4:6-8. और फिलिपियों 4:6 से लेकर 8 में लिखा है। Peace with God प्रभु के साथ शांति, and peace of God. प्रभु की शांति। As leaders, I'm asking you a question. और एक अगुवे होने के नाते मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा Are हूँ, you at peace with God? क्या आप प्रभु के साथ शांत हैं? Do you have the peace of God? क्या आपके पास प्रभु की शांति है? How are you with your church, your fellow leaders? How are you with your fellow church members? Are you at peace with God and peace with one another? और आपका संबंध आपके जो बाकी के अगुवे उनके साथ कैसा है? आपकी जो कलीसिया के लोग हैं उनके साथ कैसा है? क्या आपके पास प्रभु की शांति है? To take the yoke in those days meant you become a disciple of Christ. और जुआ उठाना उस समय का मतलब था कि प्रभु का शिष्य बन जाना। When we are submit to Christ, we are yoked to Him. और जब हम प्रभु के अधीन होते हैं तो एक तरह से हम उसके साथ जुड़ जाते हैं। The word easy means well fitting. और आसान का मतलब है कि सही मायने में जुड़ना। This yoke that He is preparing for us is tailor made for you and I. और जो जुआ जो वो हमारे और आपके लिए बना रहा है, एक तरह से वो नाप के बना रहा है हमारे और आपके The लिए। burden of doing His will is not a heavy one. और उसकी इच्छा का जो बोझ है वो एक तरह से भारी नहीं The है। reason we are burdened is because we are not fully yoked with Him.
और जो वजह है हम जो एक तरह से हमारे ऊपर बोझ है वो ये है कि हम उसके साथ बराबर से जुड़े नहीं हैं। Then he says, learn from me. और फिर कहता है कि सीखो मुझसे। As we learn more about Jesus, और जब हम यीशु के बारे में और सीखते हैं, his grace, उसका अनुग्रह, his love, उसका प्यार, his mission, और उसका जो मिशन है, his patience, और उसने जो शांति बनाई है हमारे प्रति, we find deeper peace in our hearts. और एक तरह से हमें अपने हृदय में गहरी शांति महसूस होती है। Life for us is simplified and unified around the person of Jesus Christ. हमारा जो जीवन है वो एक तरह से आसान हो जाता है, एकत्रित हो जाता है यीशु व्यक्ति के साथ। Therefore he gives that invitation to all of us. इसीलिए वो हमें न्योता देता है, हम सभी को देता है। 2020 was very disruptive in many ways. और 2020 कई मायने में बहुत ही गड़बड़ी वाला We are साल still रहा है। recovering from that big shock that came upon the whole world. और हम वापस उस स्थान से बाहर निकल रहे हैं, उभर के आ रहे हैं। But we are not without hope. लेकिन हम आशा के परे नहीं हैं। There is an invitation हम सभी के लिए एक आमंत्रण है, for us to come. हम सब लोग आ सकते हैं। But we are not just coming to an organization, we are not just coming to a program, we are coming to a person. और एक तरह से हम कोई संस्था के पास नहीं आ रहे हैं, हम कोई कार्यक्रम में नहीं आ रहे, लेकिन हम एक व्यक्ति के पास आ That रहे हैं। person is Jesus Christ. वो व्यक्ति यीशु मसीह है। He did something so beautiful. उसने बहुत ही सुंदर कार्य किया है He हमारे लिए। carried the burden उसने बोझ हमारे लिए उठाया है, that came out of his relationship with his father. और वो इसलिए हुआ कि उसका संबंध पिता के साथ था। If you and I understand that, अगर हम और आप इस बात को समझ लें, the situation may not change, स्थिति शायद बदले ना, but we will change daily. लेकिन हम बदलेंगे रोज। Don't try to do any ministry without relationship with the Father. कोई भी सेविकाई ना करिए बिना पिता के संबंध Son के साथ। reveals the Father reveals the Father to us, और जो बेटा है वो पिता को दिखाता है, दर्शाता है हमारे and लिए, Father draws us to the Son. और पिता जो है हमें पुत्र के पास लेके जाता है। Let's not just get on just busy with doing things. और हम अपने आप को एक तरह से सिर्फ कार्य करने में ही पूरा दिन न लगाते। I believe some of you may want to take a short break and maybe just a sabbatical and say reflect on things in God before you launch out yourself fully. और शायद हम में से कई लोग चाहें कि एक थोड़ा सा समय हम अलग से निकालें, एक तरह से छुट्टी लें अपने कार्य से और ध्यान लगाएं। It is not just taking a break just like that, but I think it is to draw closer to God. वो छुट्टी लेना ऐसा नहीं है कि कुछ भी कार्य ना करें, लेकिन वो इसलिए है कि ताकि हमारा संबंध प्रभु के साथ अच्छा हो May जाए। the Lord continue to strengthen us. पिता हम सभी को और मजबूत करें। We have a mission to fulfill. हमें एक मिशन को पूरा करना है, We have things to do. हमें कार्यों को करना है। Some of us are tired, हम में से कई लोग थके हुए हैं, but there is a solution. There is an invitation from Jesus himself. लेकिन प्रभु ने एक रास्ता निकाला है, प्रभु ने एक न्योता दिया है। Let's operate from that place of security and relationship with the Father. आइए हम सुरक्षा के स्थान से और एक रिश्ते के स्थान से कार्य करें। I'm just going to pray. मैं प्रार्थना करूंगा। Father, I thank you for your word. पिता हम धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए। Lord, we all have had difficulty in trusting you fully. पिता हम सभी को परेशानी हुई तेरे पे भरोसा करने में पूरी तौर से। Some of us who are really tired, weary and burned out. और पिता कई हम में से लोग प्रभु थके हुए हैं, एक तरह से बोझ से दबे हैं। Help us, Lord, to renew our relationship with the Father. और प्रभु हमारी मदद कर ताकि हमारा संबंध पिता के साथ अच्छा हो जाए। Lord, you operated from that place of relationship. और प्रभु तूने कार्य किया उस संबंध के स्थान से। Lord, I don't want to do anything without that relationship. पिता मैं कुछ भी कार्य नहीं करना चाहता हूँ बिना उस संबंध के। I pray you would touch all of us. पिता मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ तो हम सबको स्पर्श कर, We will be that community. हम ऐसे लोग बन जाएं, Know their God अपने प्रभु को जानें, and have that relationship उस संबंध को बनाए रखें and do things from that place. और उस स्थान से कार्य करें। Help us, we pray. हमारी मदद कर प्रभु, In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन।